میرا نام صبا ہے۔ میں لیاقت پور کی رہنے والی ہوں۔ میں بہت ہی زیادہ غریب فیملی سے ہوں۔ میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ میری ماں کو یرکان تھا۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی جب مجھے پتا چلا کہ ہماری ماں کو یرکان ہو چکا ہے، اور وہ بھی کالا یرکان۔ میرے بابا کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ ہم بہت غریب تھے۔ جب گھر میں کھانا نہیں بچتا تھا تو پاس کے کھیتوں سے آلو لا کر اس کو ابال کر ہم لوگ کھاتے تھے۔ ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن اماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ہم لوگ شہر آئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی جس سے ماں کو تھوڑا آرام ملا۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ہم اپنی ماں کو لے کر نہیں گئے تھے۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا۔ کسی نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ بابا پاپڑ بیچتے تھے، جو وہ بیچتے تھے اس سے جو بھی پیسے آتے تھے اس سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ ہم اپنی ماں کو شہر سے لے کر گھر آ گئے تھے۔ اسی طرح سے ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا گیا۔ میں 13 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن پڑوس والی آنٹی ہمارے گھر میری ماں سے ملنے آئی۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ پاس کے ہی گاؤں سے ایک رشتہ ہے۔ یہ سن کر تو بابا خوش ہو گئے۔ ماں نے بھی سوچا کہ چلو جیتے جی میری بڑی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ بابا تھوڑا سا ٹینشن میں آ گئے تھے کہ شادی کے لیے تو پیسے ہی نہیں ہیں، لیکن کسی طرح سے بابا نے اس آنٹی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس رشتے کے لیے تیار ہیں، لیکن لڑکا کیا کام کرتا ہے؟ آنٹی نے کہا اس کی فکر آپ نہ کریں بھائی صاحب، اچھا ہی کام کرتا ہے، اس کی دکان ہے۔ آنٹی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لڑکے والوں کو میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ لوگ آ کر رخسانہ کو بیاہ کر لے جائیں۔ بابا کہنے لگے کہ جیسا وہ لوگ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ آنٹی کہنے لگی وہ لوگ ہفتے کے اندر ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بابا کسی طرح تیار ہو گئے۔ بابا نے باہر اپنے جاننے والوں سے مدد مانگی تو انہوں نے 50,000 کا انتظام کر لیا۔ اسی طرح سے جہیز کے ساتھ ہی ساری چیزیں انتظام کی گئی۔ میں بھی خوش تھی۔ آج بارات آنی تھی، یعنی کہ آج شادی ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ کر ہی خوش تھی۔ جب بارات دروازے پر آ رہی تھی تو میں دلہے کو دیکھنے چلی گئی، لیکن یہ کیا، یہاں تو صرف باجی کی شادی ہے اور دلہے دو نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنی باجی کے پاس گئی اور بولی رخسانہ باجی آپ کے تو دو دلہے ہیں۔ میں نے کہا بارات آ گئی ہے۔ باجی کہنے لگی ارے پاگل ہو گئی ہے، دلہا ایک ہی ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا۔ میں نے کہا نہیں باجی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ بابا جلدی سے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے صبا تم تیار ہو جاؤ اور رخسانہ کو بھی تیار کر کے باہر لے آؤ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بابا، میں رخسانہ باجی کو باہر لے کر آتی ہوں۔ پڑوس والی آنٹی نے رخسانہ باجی کو دلہے کے پاس بٹھا دیا اور میں اس طرف چلی گئی جدھر کھانا مل رہا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں بھی خوشی سے کھانا کھانے لگی۔ مجھے پتا بھی نہیں تھا آج میری شادی ہے اور میں اپنی ہی شادی کا کھانا کھا رہی ہوں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ادھر ادھر کھیلنے لگی، اور پھر کھیلتے ہوئے میں اسٹیج پر شادی دیکھنے کے لیے آئی، لیکن اچانک سے آنٹی نے مجھے بھی پکڑ کر جو دوسرا دلہا تھا اس کے بغل میں بٹھا دیا۔ میں نے کہا آنٹی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آنٹی بولی ارے پاگل لڑکی آج تمہاری بھی شادی ہے، تمہیں پتا نہیں تمہاری باجی رخسانہ کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی، میری عمر صرف 13 سال تھی، میں تو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تھی، پھر میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں آنٹی کا ہاتھ چھوڑ کر بابا کے پاس گئی۔ میں نے بابا سے کہا یہ سب کیا ہے بابا، میری شادی تو باجی کی ہی تھی، پھر میری شادی کیسے؟ یہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں، میری شادی ہے کیا؟ آنٹی سچ کہہ رہی ہے کیا؟ بابا کہنے لگے ہاں بیٹا تمہاری بھی آج شادی ہے، بیٹا میری مجبوری ہے، تجھے شادی کرنی ہی پڑے گی، یہ تیری ماں بھی چاہتی ہے، اور ہاں تیری ماں کو بھی پتا ہے کہ آج تمہاری اور رخسانہ دونوں کی شادی ہے۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میرے لیے اور اپنی ماں کے لیے یہ شادی کر لو۔ میں اپنے بابا کے آنسو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے بابا میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں چپ چاپ جا کر دلہے کی بغل میں بیٹھ گئی۔ ماں کی طبیعت شادی والے دن بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ماں کو جلدی سے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ ماں کو اٹیک آیا تھا۔ وہ میرے بارے میں اتنا سوچ چکی تھی کہ سیدھا ان کے دل پر زور پڑا تھا۔ میں گڑیا سے کھیلتی تھی، میں پڑھنے بھی نہیں جاتی تھی، گڑیا سے کھیلتی رہتی تھی۔ میری باجی کی عمر 20 سال تھی۔ آج میری زندگی کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہماری شادی ہو چکی تھی۔ میں اپنے سسرال آ گئی۔ میں کیسے آئی، کس کے ساتھ آئی، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا، کیونکہ شادی ہونے کے بعد میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں مجھے 2 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو سامنے میری بہن تھی، تو مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی۔ چلو کوئی نہیں، باجی تو ہے میرے ساتھ۔ میرے سسرال میں میری ساس سسر، میرے شوہر اور میری بہن اور ان کے شوہر تھے۔
बाजी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं तो यूं ही खेलती रहती थी। मेरा शोहर अजीब नजरों से मुझे देखता था। मैं उसके देखने से डर जाती थी और दौड़कर बाजी के पास चली जाती थी। खैर जो भी था, देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए और मैं जवान हो गई। और फिर एक हफ्ते बाद रात को मुझे कमरे में दुल्हन की तरह सजा कर बिठा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। तभी मैंने देखा कि कमरे में मेरा शोहर आ रहा था। उसे देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि वो बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा मर्द था। उसकी उम्र लगभग 32 साल होगी। वो मेरे करीब आया, आकर मेरे चेहरे को छूने लगा, मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं डर से कांप रही थी। मैं कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो। वो गुस्से से मेरी तरफ घूरने लगा, कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं डर से कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे ऐसे क्यों छू रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अरे पागल, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें नहीं पता शोहर और बीवी के बीच क्या होता है। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि शोहर और बीवी के दरमियान क्या होता है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। उसने ऐसा कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे साथ वो सब करने लगा। मैं उससे मना करती रह गई कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे दरिंदों की तरह रात भर प्यार करता रहा। फिर सुबह हुई तो मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी। सुबह मेरे कमरे में रुखसाना बाजी आई और मुझे नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर वो मुझे आराम करने के लिए कहकर खाना बनाने चली गई। मेरे लिए वो खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया और सो गई। मैं रो रही थी। अपनी बाजी को कह रही थी कि बाजी, मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। वो इंसान फिर मेरे पास आएगा और मेरे साथ वो सब करेगा। वो बहुत अजीब इंसान है जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बाजी कहने लगी, घबराओ नहीं सबा, सब ठीक हो जाएगा। देखना तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसी खेलने कूदने लगोगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही हूँ। बाजी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सो गई। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। तब मुझे उल्टियां आने लगी और मैं चक्कर खाकर सहन में गिर पड़ी। मेरी सास और बाजी दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं हामला हूँ। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या होता है और वो क्या कह रही हैं। मैं हामला हूँ, ये कैसी बीमारी है। मुझे नहीं पता था कि हामला का क्या मतलब होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उसी दिन बाबा घर आए और कहने लगे कि माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कैसा मुआवजा था कि आज ही पता चला कि माँ ठीक हो गई है। मैं तो डर गई थी कि कहीं माँ परेशान न हो ये सुनकर कि मैं हामला हूँ। खैर माँ ठीक हो चुकी थी, इस बात की खुशी थी। लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी ऐसे इंसान से जिसका मेरे साथ कोई जोड़ नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई है उसकी एक और बीवी भी थी। मैं ना समझ थी, मुझे इन सब की कोई खबर नहीं थी। मैं सोचती थी चलो ये एक और बीवी है तो इसमें मेरा क्या, मेरी तो अब उस इंसान के साथ शादी हो चुकी है, अब तो ये मेरा शोहर है। वक्त गुजर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीनों के अंदर अंदर मेरा पेट फूलने लगा था। मैं डर गई थी। मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी कि माँ जी, ये क्या, मेरा पेट इस तरह से क्यों फूल गया है, मुझे क्या हुआ है। मेरी सास ने मुझे कहा कि कुछ नहीं बेटा, इस हालत में ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बाजी के पास गई और मेरी बाजी भी इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, इस वक्त तुम हामला हो, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पेट में एक नन्हा सा बच्चा है। बाजी की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई और खामोशी से मैं अपने कमरे में आई और बैठ गई। तभी मेरा शोहर आया और कहने लगा, सुनो, तुम अपना सामान बांध लो और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा, मैं अब फौजिया के साथ रहूंगा। वो मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो तो अम्मा और अब्बा की जिद थी कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं गैर बरादरी की लड़की से शादी ना करूं। मैंने उनके कहने पर तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा गई, क्योंकि अब मैं शादी का पूरा मतलब जान चुकी थी और ये जो आदमी कह रहा था वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और वो मुझे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी शादी के लिए बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। उन्होंने पैसे जमा करके लोगों से मांग कर हमारी शादी की थी। अगर ये आदमी मुझे छोड़ देगा तो मेरे बाबा जीते जी मर जाएंगे, मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं रोती हुई अपने सास ससुर के पास गई।
बाजी भी वहीं पर थी। मैं रो कर कहने लगी कि देखे शौकत क्या कह रहा है कि वो मुझे नहीं रखेंगे। मेरी सास परेशान हो गई। मेरे सर जी मेरे शोहर को सुनाने लगे कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। सबा बहुत अच्छी लड़की है और ये माँ बनने वाली है तुम्हारे बच्चे की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें इसके साथ ही रहना होगा। मेरे शोहर को सारे लोग समझा रहे थे लेकिन मेरे शोहर किसी की नहीं सुन रहे थे। ये सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं अचानक से नर्वस हो गई। मेरे शोहर मुझे अस्पताल लेकर चले गए। मैं कम से कम 4-5 अस्पतालों से ट्रांसफर होकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे या माँ से हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। डॉक्टर जो थे वो मेरे शोहर पर गुस्सा कर रहे थे कि इसकी उम्र का लिहाज ही कर लेते कि कितनी कम उम्र लड़की है और माँ बनने वाली है और इसकी डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल है। उस वक्त में ससुराल वालों ने कहा आप बच्ची को बचाएं, माँ का क्या है, हम माँ तो दूसरी भी ले आएंगे, आप हमारे चिराग को बचाएं, हमारे घर के चिराग को बचा लें। मेरे शोहर ने पेपर्स पर साइन कर दिया है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी समझो या मेरी बदकिस्मती समझो कि मेरा बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। मेरी माँ और बाबा दोनों अस्पताल आए और मेरे शोहर ने मुझे मेरे माँ बाबा के साथ भेज दिया। जब मेरा बच्चा 2 महीने का हो गया तो मेरा शोहर आया और मेरे बच्चे वो मुझसे छीन कर ले गया। मेरा शोहर कहने लगा कि सबा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी पहली बीवी के साथ रहूंगा और अपने बच्चे को मैं उसकी गोद में डालूंगा, और वो मेरा बच्चा छीन कर ले गया। बाबा जब घर आ गए तो मैंने अपने बाबा को रो रो कर बताया। मेरे बाबा मुझे समझाने लगे और कहने लगे सबा तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ससुराल वाले पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे लोग हैं, हो सकता है वो लोग नाराज हो, तुम ऐसा करो तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ और देखो वहां पर जाकर सबको मनाओ, तुम देखना वो जरूर मान जाएंगे। बाबा ने मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दिया और वहां से ही बाबा ये कहकर चले गए कि बेटी घर बचाना तुम्हारा काम है, इन मामले में मैं नहीं बोल सकता, देखो तुम अपने घर को टूटने से बचा लो और ससुराल वालों के लिए खामोशी से सब बर्दाश्त कर लेना। मैंने कहा ठीक है बाबा, इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भाई इतनी कम उम्र में ही मैं माँ बन गई थी, मैं बदकिस्मती से बच गई थी। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ आने को तैयार हो गई थी। माँ बनना किससे कहते हैं ये मुझे आज एहसास हुआ था। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना था। मैं ससुराल पहुंची तो सीधा अपने कमरे में अपने बच्चे के पास गई। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। उस वक्त मेरा शोहर मेरे कमरे में आया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे को मुझसे खींचकर बेड पर लिटा दिया और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और बेल्ट निकालकर मेरे बदन पर बेल्ट मारा। मैं तड़प रही थी। बाहर मेरे ससुर दरवाजा खोलने को कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं अपने शोहर से हाथ जोड़ रही थी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मेरे बच्चे को और मुझे अपने साथ रखना, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो मेरे बच्चे के साथ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना और मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि आज अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं मर भी ना पाई। मेरी बहन को भी मुझ पर बहुत तरस आता था। मेरी बहन को मुझ पर किया गया ये जुल्म बर्दाश्त न हुआ, वो भी उस घर को छोड़कर चली आई। मैं थाने गई लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैंने जज से दरख्वास्त की, लेकिन जज का जवाब था कि देखो केस मत लो, क्योंकि जीतना तो उससे नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसे देकर जीत ही जाएगा। इसलिए ऐसा करो तुम उसके साथ मिलकर रहने की कोशिश करो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है साहब, आपको जो कहना था वो कह दिया, मुझे क्या करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि मेरा बच्चा मुझे दिलवा दो। वो जज कहने लगा कि वो बच्चा तो तुम्हें मिल नहीं सकता और बच्चा तुम्हारे शोहर के हक में ही होगा, क्योंकि तुम अभी छोटी हो और बच्चा तुम्हें तब ही मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं जज साहब के सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा जज साहब कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिला दो। जज साहब कहने लगे कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बच्चा तुम्हें मिल जाए। तुम 50,000 का इंतजाम करो। मैंने जैसे तैसे करके 50,000 का इंतजाम कर लिया और जज साहब को दे दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई और मेरा बच्चा मेरे शोहर को मिल गया। मैं अपने शोहर के सामने हाथ जोड़ रही थी, उसके पैर पकड़ रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज, वो मर जाएगा, वो बहुत छोटा है, उसको मेरी ज़रूरत है। लेकिन उसको उस मासूम बच्चे पर भी रहम ना आया। जज साहब का कहना था कि बच्चा आपको नहीं मिल सकता, आपकी उम्र 18 साल होती तो मिल जाता, लेकिन आप बहुत छोटी हैं, आप बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उनका ये कहना था कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मामा बाबा ने मुझे किसी तरह संभाला और मुझे घर लेकर आए।
مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں تکیے میں سر رکھ کر گھنٹوں روتی رہی۔ مجھے میرا بچہ بہت یاد آتا تھا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔ بابا نے مجھے خالہ کے گھر بھیج دیا۔ میں خالہ کے گھر 5 سال تک رہی۔ خالہ کا ایک بیٹا تھا، وہ بہت اچھا تھا، وہ پڑھا لکھا بھی تھا، میری ساری حقیقتوں سے واقف تھا۔ میں نے اسے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اعظم مجھے ہنسانے کی بہت کوشش کرتا، بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ اعظم بہت اچھی نوکری کرتا تھا، اس کی انکم بھی کافی اچھی تھی۔ اس نے ہی میری پڑھائی کمپلیٹ کروائی۔ میں یہاں بہت خوش تھی، بابا سے بات کرتی رہتی تھی۔ خالہ بابا کو بتاتی تھی کہ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بھی بابا سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، کہ باجی کو کہو کہ بھائی جی کو منا لے اور انہیں بھی ساتھ امریکہ لے جائے۔ میری بہنوئی امریکہ میں ہی رہتے تھے۔ میرے بہنوئی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ ان جاہلوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ میرے کہنے پر رخسانہ باجی نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور میرے بہنوئی نے باجی کو امریکہ میں بلا لیا۔ باجی اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ میری وجہ سے باجی وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ باجی نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بہنوئی بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے رخسانہ باجی کو امریکہ میں بلا لیا۔ خیر اماں ابا بھی اچھے سے رہ رہے تھے، میں ان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ادھر اعظم اور خالہ جی پوری کوشش کرتے کہ میں اپنی پرانی یادوں کو بھول جاؤں، میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں بھول جاؤں، لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی وہ ساری باتیں، وہ سارے حالات جو میرے ساتھ گزرے ہیں، وہ زخم جو آج بھی میرے بدن پر موجود ہیں۔ ایک دن میں رو رہی تھی کہ تبھی اعظم میرے پاس آیا اور کہنے لگا، صبا تم برا نہ مانو تو ایک بات بولوں۔ میں نے اعظم سے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اعظم کہنے لگا کہ تمہیں اگر دوبارہ شادی کرنے کا موقع ملے تو کیا تم کرو گی؟ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے نفرت ہے شادی کے نام سے۔ میں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہیں اچھا لڑکا ملے تو کیا تم شادی نہیں کر سکتی؟ صبا نے کہا بالکل نہیں۔ اچھے تو وہ لوگ بھی تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن کیا ہوا بعد میں جب شوکت کا اصلی روپ سامنے آیا؟ اتنی چھوٹی عمر میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے شادی کے نام پر ڈر لگتا ہے۔ اعظم کہنے لگا، صبا تم کیوں ڈرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ اعظم کی ایسی باتوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اعظم؟ میرے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا، اور اتنا کچھ جانتے ہوئے تم مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ اعظم ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اسے تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے، اور اتنی اچھی نوکری کرتا ہے، پھر وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اعظم کہنے لگا، دیکھو میں ماں سے بات کروں گا، تم بس ایک بار ہاں کہہ دو، تمہاری زندگی میں جو بھی دکھ ہے میں سارے ختم کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری زندگی کے سارے زخم مٹا دوں گا اپنی محبت سے۔ اور سچ کہوں تو جب سے تم آئی ہو نا میری زندگی میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے اس معصوم چہرے سے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی لڑکی ہو، ماں کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ماں کو منا لوں گا۔ میں نے اعظم سے کہا، نہیں اعظم، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، وہ کبھی نہیں مانے گی اس رشتے کے لیے۔ اعظم کہنے لگا، اگر ماں مان گئی تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں مجھ سے شادی کرنے سے؟ میں نے کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی، میں ابھی بھی ان ساری باتوں کو بھول نہیں پائی ہوں، میں اپنے بچے کو آج بھی یاد کرتی ہوں، میرا دل تڑپتا ہے، میں اپنے بچے کو پانا چاہتی ہوں، اپنے بچے کو چھونا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پر میری قسمت تو دیکھو، اسے سینے سے بھی نہیں لگا سکتی۔ اعظم کہنے لگا، صبا دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم زندگی بھر اکیلی نہیں رہ سکتی ہو نا، تمہیں کسی کے ساتھ کی تو ضرورت ہوگی، تم اکیلے زندگی کب تک گزارو گی؟ اعظم میرے قریب آیا اور کہنے لگا، دیکھو صبا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تمہارے لیے میں تمہارے بچے کو بھی اپنانے کو تیار ہوں، تم بس ایک بار ہاں کہہ دو، میں تم سے شادی کر کے تمہارا بچہ تمہیں واپس ضرور دلواؤں گا اور تمہاری گود میں لا کر رکھ دوں گا۔ اعظم کا اتنا کہنا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اعظم کے سینے سے لگ گئی۔ اعظم نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، تبھی خالہ نے ہمیں دیکھ لیا۔ اعظم ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا، میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اعظم نے پوری کوشش کی خالہ کو منانے کی۔ خالہ نے کہا، بیٹا مجھے صبا شروع سے پسند ہے اور میں ہمیشہ سے اسے ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ۔ اعظم یہ بات سن کر خالہ کے سینے سے لگ گیا، اور پھر اعظم اور خالہ میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے کہا، صبا میری بچی، تمہیں بہت دکھ ملے ہیں، میں چاہتی ہوں تم اعظم سے شادی کر لو اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو، تم اپنی ساری پریشانیاں اور دکھوں کو بھول جاؤ گی، اپنے سارے گزرے ہوئے پل کو بھی بھول جاؤ گی، اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ میں اپنی خالہ کے سینے سے لگ گئی، اور میرے اس رشتے کے لیے خالہ نے اماں ابا کو بھی بلا لیا۔ خالہ نے ہماری شادی بڑی ہی دھوم دھام سے کی تھی۔ آج میں اعظم کی دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔
आज़म मेरे कमरे में आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आज मैं बहुत खुश थी। वक्त इसी तरह से गुजर गया और 5 महीने गुजर गए। एक दिन आज़म मेरे पास आया और कहने लगा, सबा चलो हमें लियाकतपुर जाना है। उधर का नाम सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज़म कहने लगा, चलो मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगा। मैं आज़म के साथ लियाकतपुर आ गई। लियाकतपुर आकर पता चला कि मेरे ससुराल वाले जितने भी लोग थे वो ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि शायद मैं अब अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगी। शायद किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है। मैंने अब सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ने चाहा तो मुझे मेरा बेटा एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। ये उम्मीद कहीं ना कहीं मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। खैर अब हम अपने घर लौट आए थे। आज़म मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम परेशान ना हो, देखना तुम अपने बेटे से एक दिन ज़रूर मिलोगी। इसी तरह हमारी शादी को 2 साल गुजर गए। मुझे खूबसूरत सी बेटी हुई जिसका नाम मैंने मुस्कान रखा। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। घर वाले भी बहुत खुश थे। आज़म भी बहुत खुश था। लेकिन अचानक से हमें ये मालूम हुआ कि मुस्कान देख नहीं सकती। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची देख सकती है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आज़म कुछ करो, हम बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाएंगे। मुस्कान को बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हम उसका वहाँ इलाज करवाएंगे। आज़म ने कहा, ठीक है, हम ज़रूर जाएंगे, तुम परेशान ना हो। मेरा एक दोस्त है जो मेडिकल में है, मैं उससे पता करके बताता हूँ कि आंखों का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। हम उसी के पास लेकर जाएंगे। आज़म अपने दोस्त को कॉल करने लगा और फिर उसका दोस्त आज़म को कहने लगा कि देखो यार आज़म, अगर तुम अच्छी डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो तुम यहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते। तुम्हें दूसरे शहर जाकर इलाज करवाना होगा क्योंकि वहाँ डॉक्टर बहुत बड़े हैं। हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे केस को उन्होंने ही हल किया है। मैंने कहा, आज़म सोच क्या रही हो, अपने दोस्त को कहो भेज दो। आज़म ने अपने दोस्तों से कहा कि देख यार, तू ऐसा कर, उस डॉक्टर का पता मुझे दे दे, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। आज़म ने एड्रेस लिया। मैंने खाला से बात की, वो भी मायूस थी। कहने लगी, मेरे बच्चे ठीक है, तुम लोग जाओ और मुस्कान का इलाज करवाओ। जितने भी पैसे लगेंगे तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह ट्रेन में बैठकर हम लोग उस शहर पहुंच गए जहां पर एक बहुत मशहूर आंखों का डॉक्टर था। हमने उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और मुस्कान का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने का वक्त लगेगा, मुस्कान बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। कुछ भी नहीं हुआ है। इस बच्चे की आंखों के ऊपर एक झिल्ली है जिसका ऑपरेशन होगा। ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे डॉक्टर की बातों से थोड़ा सुकून मिला। आज़म बेहद खुश हो गया। मैं और आज़म हम दोनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास में ही एक फ्लैट बुक करवा लिया 1 महीने के लिए। दिन यूं ही गुजर गए। मेरी बच्ची का इलाज चल रहा था। लेकिन उस बीच एक दिन मैं फ्लैट से बाहर निकली तो मैंने जिससे देखा उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उस फ्लैट के बाहर मैंने उस इंसान को देखा जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती थी। उस इंसान को मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के लिए तड़पने लगी। मैंने उस इंसान का पीछा किया। वो उस फ्लैट के ऊपर था जिस फ्लैट में हमने कमरा ले रखा था। मैंने उसका पीछा किया तो देखा वो दूसरे फ्लोर पर जा रहा था। मैं गई, मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया। वो अंदर गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसके सामने आ गई। मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। मुझे मेरे बेटे से मिलने की तड़प थी। मैंने अपने चेहरे को छुपाए रखा और उस आदमी से कहने लगी, सुनिए। तो वो चौंक गया और कहने लगा, हाँ बोलिए, क्या बात है। मैंने कहा, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए किराए पर मकान चाहिए, क्या आप मुझे दिलवा सकते हैं। वो कहने लगा, जरा आप 1 मिनट बैठे, मैं आता हूँ। उसके हाथों में कुछ सामान था। वो किसी बच्चे को आवाज दे रहा था, अली कहाँ हो। एक प्यारा सा बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आया। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद यही मेरा बच्चा है। मैं उसे छूना चाहती थी, मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ अपने सीने में दबाकर खामोशी से उस बच्चे को देख रही थी। उस आदमी ने उस बच्चे को सामान दिया और कहने लगा, जाओ अपनी माँ को दे दो। ये सामान लेकर वो बच्चा अंदर चला गया। मैं वहां से निकल आई और सीधे अपने कमरे में आई। शाम हुई तो आज़म डॉक्टर के पास गया हुआ था क्योंकि हमारी बच्ची वहीं पर एडमिट थी। मेरी बच्ची का इलाज चल रहा था। यहाँ एक तरफ मेरी बच्ची का इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ अल्लाह ने मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दिया। आज मैं बहुत खुश थी। आज़म जब घर आया तो मैं आज़म के सीने से लग गई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आज़म को सारी हकीकत बता दी। आज़म ने कहा, हम उससे डायरेक्ट तो बच्चा नहीं ले सकते। सबा, तुम सब्र करो, देखो अब मैं तुम्हारा बच्चा उससे कैसे लेता हूँ। आज़म, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ।
आज़म ने कहा, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। आज़म की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। आज़म ने कोर्ट में बात की तो जज ने कहा, आज़म, ये काफ़ी सालों पुरानी बात है और अब तो वो बच्चा अपने बाबा के पास ही रहना चाहेगा। बच्चे का जवाब जानना चाहेंगे। जब कोर्ट में बच्चा आएगा तो उसके सामने माँ और बाप दोनों को खड़ा किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। अगर माँ के साथ रहना चाहता हो तो उसे माँ को सौंप दिया जाएगा और अगर वो बाप के साथ रहना चाहेगा तो उसे उन्हीं के हवाले कर दिया जाएगा। और तुम कह रही हो कि ये इतने साल पुरानी बात है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चा अपने बाबा के पास ही रहना चाहेगा, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं जिसे उसने बचपन में देखा है, और उसके साथ ही रहना चाहेगा। तो ये केस करके या कोर्ट में लड़कर कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चा कभी भी आपकी बीवी के साथ नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि उसने हमेशा से ही अपने बाप को अपने पास देखा है जिसने उसकी परवरिश की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार तुम लोग इत्मीनान से सोच लो, फिर मुझे जवाब दो। मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे जज साहब की ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जज साहब सही कह रही हैं। मेरा बच्चा तो मुझे पहचानेगा भी नहीं, वो तो उस इंसान को पहचानेगा, वो तो उस औरत को अपनी माँ मानता होगा, वो मेरे साथ कभी भी रहने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताएं कि अब मुझे केस लड़ना चाहिए, क्या मुझे कोर्ट में केस लड़कर अपने बच्चे को वापस हासिल करना चाहिए या फिर उसे उसके बाप के पास ही छोड़ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।